Hello everyone, welcome back to the Mark Dasak. So, as you people are aware that we are doing the previous year paper series, in this we are already done with the two papers of CDS and two papers of CAPF. So today we are moving towards the next paper, that is the CDS examination paper 1 2024. And in this series we are already done with the CDS 2 2024 and CDS 1 2025 paper. So let's move towards the CDS 1 2024 paper. Okay, so we will start with the first question and we will try to summarize this whole paper in 3 or 4 lectures. So let's begin with the question number first, that says the consider the following statement about the Jove culture of the Deccan. So basically Jove culture है उसके बारे में जो statement है, we have to read this statement and we have to make them correct. Okay, so first is that it covers practically the whole of the modern Maharashtra except the coastal Konkan districts. So basically this is a general state है ना, प्लस जोवे कल्चर का अगर आप मैपिंग देखोगे तो ये आपको मॉडर्न महाराष्ट्र में मिलेगा, एक्सेप्ट द कोंकण कोस्ट आपको एक्सेप्ट मतलब कि छोड़ना पड़ेगा, है ना. सो देन आफ्टर द सेकेंड इज द परवरा गोदावरी वैली सीम्स टू हैव बीन द न्यूक्लियर जोन. ओके, सो ये वाला भी it's look like very generous statement, so we can't go with the wrong or with the incorrect statement in this. And the third says it the large sites of this culture yield evidence of the shifting culture. So basically shifting culture is a controversial thing. So in this Jove culture you will not going to find any evidence of the shifting culture. So here you will find that option C is going to be incorrect. So if you आर नॉट अवेयर ऑफ द ट्रिक्स, दैट इज़ द ट्रिक. बेसिकली ये कहता है कि अगर यहाँ वाले इस तीन स्टेटमेंट्स दे रखे हैं देन यू हैव टू गो विद द ऑल थ्री, है ना. सो हियर द ट्रिक मे गोट फेल्ड, बट इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनी ऑफ these things, but if you wanted to do attempt this question, then you can go with the option D. Sometimes you may find negative in some questions, but overall you will find that there is a net positive. Okay, so here you will find the option B is going to be the correct option. Okay, question number 2 says consider the following statement about the Madurai, the capital of the Pandya kingdom. So basically Pandya kingdom की capital के बारे में पूछा गया है. तो here you will find कि हाँ इसमें भी हमने जैसे कि if we go with the trick then we will go with the option D as correct. So यहाँ पे भी अगर हम option D को correct मान के then we will do the paper, then it is first is it has been described in the Madurai Madurai Kanchi as a large grand city enclosed by the walls on the three sides and Vangai river on the fourth side. So basically ये एक natural fort की तरह है, so that is going to be the correct option. And the second statement says that Shastra mentions it as a center of fine cotton textiles. So ये वाला भी common sense मतलब थोड़ा बहुत भी general है, so you can go with option B also as in correct options. मतलब कि statement B as in correct statement. Third is the other literary sources describe it as a major craft center. So option C, statement C is also general statement, so we can go with option D, that is all of the three are correct. So here the trick will going to work. Okay, question number 3 says consider the following statement about the Swai Jai Singh's astronomical work. So basically we know that Swai Jai Singh was an extraordinary person towards the astronomy. उन्होंने काफ़ी एस्ट्रोनॉमी में वर्क किया था. इनकी एस्ट्रोनॉमी साइट्स थी, आपको पता होगा, एक तो जयपुर में, मथुरा में, फिर ना दिल्ली में, वृंदावन में, एंड वन मोर, मतलब 5 बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज थी जो यू हैव टू कमेंट इन द यू हैव टू गो एंड कमेंट about the sites. Okay, so there are 5 sites. Okay, the first statement said he learned to of the accuracy of European observation and obtained D La Hires table from which he reproduce a refraction table. Okay, so basically ये वाला है कि उन्होंने लर्न किया था, उन्होंने सीखा था एक्यूरेसी इन द यूरोपियन ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशंस एंड ऑब्टेन किया था डी ला हायरेज टेबल फ्रॉम विच ही प्रोड्यूस ए रिफ्रैक्शन टेबल. सो बेसिकली ये जनरल स्टेटमेंट है, प्लस अगर आप है ना फैक्ट वाइज भी देखो तो इट इज़ गोइंग टू बी करेक्ट. बट सेकंड वाला अगर आप पढ़ोगे तो ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के है. सो इट सेज हिज एस्ट्रोनॉमर्स ऑल्सो डेवलप्ड ए टेलीस्कोप ऑफ देयर ओन टू ऑब्जर्व द लूनार फेज ऑफ वीनस. सो बेसिकली ये वाला थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड हो गया है ना. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट. सो हियर यू विल फाइंड ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 says the Man Kotuhal, a work on music, was prepared under the aegis of पहला है राजा मान सिंह तोमर, मान सिंह ऑफ द ग्वालियर. सेकेंड इज द तानसेन, थर्ड इज द मीराबाई, फोर्थ इज द अमीर खुसरो. सो बेसिकली यहाँ पे इफ़ यू गो विद द कॉमन सेंस एंड जस्ट ओपन माइंड, सो यू विल फाइंड कि मान कोतूहल इनमें क्या आ रहा है, मान आ रहा है ना. एंड यू विल फाइंड दैट ऑप्शन ए में राजा मान सिंह है ना. सो बेसिकली यू कैन कनेक्ट द वर्डिंग्स हियर, वर्ड्स यू कैन कनेक्ट विद द मान. Okay, so here you can go with the option A as in correct. Here question number 5 says consider the following statement regarding the सुगम्य भारत अभियान. सुगम्य भारत अभियान के बारे में कौन सा करेक्ट है. ओके, सो हियर अगर आप इसके हिसाब से जाओगे हमारे ऑप्शन है ना, तो यू विल फाइंड ऑप्शन ए इज करेक्ट है ना. बट यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे इसको तो यू विल जस्ट कंफर्म योर आंसर. ओके, This program is initiated by the Department of Employment of Persons with Disability, Ministry of Social Justice and Empowerment. Basically सुगम्य भारत है तो Ministry of Social Justice से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए गोइंग टू बी करेक्ट. ओके, ऑप्शन बी कह रहा है कि डेवलप ए इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर पर्सन विद द डिसेबिलिटी. हाँ, सुगम्य भारत दे रखा है, मतलब सुगम्य कुछ सुगमता से रिलेटेड है ना. सो हाँ, सुगमता प्रोवाइड करना PWDs को, हाँ ये वाला हो सकता है. ओके, थर्ड क्या बोल रहा है, इट हैज़ प्रोविजंस ऑफ पेंशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी. सो बेसिकली सुगम्य भारत जो अभियान है, इफ़ यू नो, ये बेसिकली एक डेवलप करता है बैरियर फ्री एंड एक्सेसिबल इन्वायरमेंट फॉर ऑल PWDs. बट यहाँ पे अगर आप देखोगे पेंशन यानी मॉनेटरी बेनिफिट का तो यहाँ पे कोई मेंशन है ही नहीं इसमें सुगम्य भारत में. सो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट. सो यहाँ पे हमारा ना ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट एंड ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट. सो बेसिकली इनमें आपको ये भी देखना है कि कुछ है ना, जैसे ये इजीली फोल्ड ट्रिक्स थी और ट्रैप थे, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस लगाते तो यहाँ पे यू कैन से कि आप है ना सही जा सकते थे. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6 that says which among the following was not a part of the action program of non cooperation movement. non cooperation movement एक है ना सत्याग्रह था, आपको बता दें. यहाँ पे अहिंसा दैट इज नॉन वायलेंस इज प्रोहिबिटेड. एंड सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द इतने नॉलेज में अगर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे सो वी विल फाइंड द आंसर. ओके, सो द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू रीच डाउन टू द विलेजेस एंड मोहल्लाज. कॉमन है, हाँ पहुंची होगी, किसको पता. सेकंड इज बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस. ये तो सत्याग्रह का है कि आप बॉयकॉट करोगे स्कूल्स एंड कॉलेजेस को एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को. देन टेकिंग कंट्रोल ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ऑफ द स्टेट बाय द कांग्रेस वर्किंग कमिटी. सो यहाँ पे क्या देख रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रहे हो, यानी कि आप वॉयलेंस की तरफ जा रहे हो. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेज थे, द ब्रिटिशर्स विल सरेंडर देयर पावर एंड दे विल गिव यू द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, है ना. सो उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, फाइट करोगे तो नॉन वायलेंस होगा. तो यू विल फाइंड कि ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द इनकरेक्ट ऑप्शन. ओके, यानी कि ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फ्रॉम दिस. ओके, डी हो गया सरेंडर ऑफ द टाइटल्स बाय गिवन. ये वाला तो कॉमन हो गया ना, ये वाले तो करेक्ट ही हो गए. बट यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेंगे तो वॉयलेंट मीडियम यूज़ करेंगे. So that is why it is going to be incorrect. Question number 7 says consider the following statement about the Mauryan state and the forest people. Okay, so Mauryan states और people से related है. So basically forest people were subjected to new form of political and economic dominance and necessity to subordinate and assimilate them led to a change in the earlier attitude of excluding their people from imperial territory. Okay, second बोल रहा है the state recognized that the forest produce was the sole monopoly of the forest people. Okay,
The state was concerned with the conservation of forest, and to its end the burning of the forest was prohibited. Okay, the forest people could be harnessed to serve the state and could be used as a troops in spies and assassins. So basically ये spies और troops के थ्रू और assassins के रूप में काम में आ सकते हैं, मतलब कि इनको वर्क अपॉइंट किया जा सकता था. सेकेंड इज स्टेट वॉज कंसर्न. बेसिकली फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड तो पहले से ही हम वर्क मतलब कि एक्शंस कर रहे हैं. सो दैट इज़ वो ऑप्शन सी इज ऑल्सो गोइंग टू बी करेक्ट. यहाँ पे अगर आप देखोगे है ना, सो ऑप्शन 3 and 4 2 आर करेक्ट. सो यहाँ पे आप देखोगे थर्ड बोल रहा है स्टेट रिकॉग्नाइज दैट द फॉरेस्ट प्रोड्यूस वॉज द सोल मोनोपोली. सोल मोनोपोली अगर मान लेंगे, अगर कॉमन सेंस से भी लगाओ, तो फिर गवर्नमेंट को फिर वो है ना, मतलब कि स्टेट को क्या बेनिफिट होगा उससे, है ना. सो हियर यू विल फाइंड ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट ऑप्शन. And option 1 statement 1 says the forest people were subjected to new forms of political and economic dominance, and the necessity to subordinate and assimilate them led to the change in the earlier attitude of excluding their people from imperial territory. Basically ये वाला common statement है, that is general statement. So here you will find option C is going to be correct, क्योंकि हमने देखा कि statement B is incorrect, so that is why all other three are correct. Okay. Question number 8 says, at which of the following place was the diamond mining carried out during the Delhi Sultanate? So basically हमने सुना होगा मूवीज में, प्लस एक है ना डायलॉग है ना, सो दैट इज अबाउट द ना पन्ना दैट इज कहाँ पे, पन्ना एमपी में. ओके, सो बेसिकली इससे रिलेटेड है ये वाला. पन्ना से मतलब कि डायमंड्स का पहले काफ़ी भी ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा माइनिंग होती थी. सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ गोइंग टू बी करेक्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 9 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च इन दिसंबर 2021. सो बेसिकली जेम्स वेब टेलीस्कोप है, सो उससे रिलेटेड है. सो इसमें देखोगे तो द इट ऑर्बिट्स द सन अराउंड about 15 lakh kilometer away from the earth. Okay, it orbits the earth about the 15 lakh kilometers away. Okay, it is stationary in space nearly 10 lakh kilometer away from the earth. Okay, fourth says it revolves around the moon nearly 3.5 lakh किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. सो बेसिकली अगर ना आप जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में देखो तो ये बेसिकली स्टडी करता है सन को, लूनार है ना, सन को स्टडी करता है. तो बेसिकली इसमें ये प्लेस किया गया था L2 पॉइंट. एंड आई डोंट वांट दैट कि अगर आप मेरे को ये कहो कि हमें L2 पॉइंट, L1 पॉइंट, L3 पॉइंट, L4 पॉइंट के बारे में नहीं पता, है ना, क्यों, बिकॉज वी डिस्कस in 2 papers, in last 2 papers, like we discussed in I think CDS 2025 as well as CAPF 2024 वाले में, 2024 वाले में, सॉरी CAPF 2024 वाले में, CDS 1 2025 वाले में ये वाला हमने डिस्कस कर लिखा है, जो कि L2 पॉइंट पे इसको प्लेस किया गया था. L2 पॉइंट कहाँ पे है, 15 लाख किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ है ना. बेसिकली ये अर्थ की मतलब सन की तरफ है, 15 किलोमीटर्स अवे है. ओके, लाख किलोमीटर्स. सो दैट इज द ऑप्शन ए गोइंग टू बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर सब एटोमिक पार्टिकल. सो बेसिकली यहाँ पे सब एटोमिक पार्टिकल्स के बारे में है. सो यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी है, यहाँ पे मतलब कि कन्फ्यूजन है. यूपीएससी गिव दैट ऑल 4 आर करेक्ट, है ना, बिकॉज वी कैन से इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है. म्यूऑन में वी आर कन्फ्यूज, बट यूपीएससी से हाँ कि म्यूऑन भी है. सो वी आर गोइंग विद दैट ऑप्शन बी दैट ऑल 4 आर करेक्ट. बट इन सम आंसर कीज वी फाइंड कि इसको म्यूऑन को है ना इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल में नहीं डाला गया है. सो बेसिकली उनके हिसाब से ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट, बट वी विल गो टुवर्ड्स द विद द यूपीएससी answer key. So that says option B is going to be correct. All 4 are the subatomic particles. Okay. Question number 11 says qubit refers to the two valued quantity in. So basically qubit से related है. qubit is basically एक quantum computer से related है. इसमें अगर आप wordings के साथ भी जाओ तो cube और qubits है ना. सो ये इससे भी कर सकते हो, प्लस इसके पास अगर आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज भी है इनसे रिलेटेड कंप्यूटर से, टेक्नोलॉजी से, सो उससे भी कर सकते हो,
And the 12th question says photo 51 refers to an image. So basically ये वाले होते हैं ना फोटो 51 काफ़ी टेक्निकल टर्म्स. सो बेसिकली ये टर्म्स होते हैं जो साइंस एंड टेक वाले पोर्शंस होते हैं ना, मेजरली उनसे साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से ही होते हैं ना, क्योंकि वहीं पे रिसर्च होती है. ये कभी सी क्रिस्पर 9 हो गया, क्रिस्पर केस 9 हो गया, कभी कुछ अलग अलग टेक्निक्स हो गए ना. सो यहाँ पे आप देखोगे इनसे रिलेटेड ही काफ़ी ज़्यादा होता है न्यूज़ में. सो अगर आपको कुछ नहीं पता, अगर आप इफ़ यू आर ब्लैंक विद द क्वेश्चन एंड अगर आपको गेस वर्क करना है, सो देन यू कैन गो विद द साइंस रिलेटेड जो भी चीज़ है उससे जा सकते हो. सो वायरस रिस्क नहीं रो ना, ये तो वायरस से तो नहीं है ना, वो तो हो गया ना नोवल कोरोना, मतलब कि CoV 2 से रिलेटेड है कोरोना वायरस, ये तो नहीं है ना. एंड देन आफ्टर द वायरस रिस्पॉन्सिबल कॉमन कोल्ड वाला तो हमें क्यों ही देगा. ओके, सो बेसिकली ये DNA मॉलिक्यूल है. ओके, सो आई टोल्ड यू दैट यू शुड गो विद द, इफ़ यू आर नॉट अवेयर देन यू कैन गो विद द साइंस एंड टेक वाला जो भी ऑप्शन है उसके साथ. सो साइंस एंड टेक वाला यहाँ पे DNA देख रहा है तो इसके साथ जा सकते हैं. एंड congratulations, this is the only correct option of this answer. Okay, so question number 13 says the rest mass of Higgs boson is estimated to close to. So basically here ना ये 125.1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम्ब स्क्वायर होता है ना. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी दैट इज़ द क्लोजेस्ट, इसके नियरेस्ट है. सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इफ यू आर अवेयर टू यू कैन डू, इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस then I said that I should go with leaving that question. Okay, question number 14 says which of the following correctly describe the principle of working of an atomic clock. So atomic clock से related है वाइब्रेशन ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एटम्स इनसाइड क्रिस्टल्स हो गया, फिर हो गया रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन सीजियम एंड और रूबीडियम एटम. ओके, एंड थर्ड इज दैट एक्साइटमेंट एंड डी एक्साइटमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द एटॉमिक क्लॉक, सो यू विल फाइंड कि इसमें जो सीजियम और रूबीडियम जो भी होता है, कभी सीजियम यूज़ किया जाता है, कभी रूबीडियम होता है. सो इनकी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, उनसे रिलेटेड होता है ये, है ना, वर्किंग प्रिंसिपल. सो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है. बट यहाँ पे अगर आप नहीं भी पता देन हाउ कैन यू अप्रोच दिस क्वेश्चन. सो उसी सिचुएशन में आप देखोगे वाइब्रेशन ऑफ स्मॉल क्वार्टजाइट. सो बेसिकली स्मॉल क्वार्टजाइट तो वाइब्रेशन से कुछ मतलब है नहीं, थोड़ा सा वेग दिख रहा है. सेकेंड से सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एटॉमिक एटम्स इनसाइड ए क्रिस्टल. ओके, ये वाला हो सकता है ना. फिर देखोगे रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम, कुछ स्पेसिफिक देर का, सीजियम एंड रूबीडियम. यहाँ पे बोरोन भी दे सकता था, कुछ और भी दे सकता, बट सीजियम एंड रूबीडियम एटम क्यों दिया, क्योंकि एग्जामिनर को उसको करेक्ट बनाना था. सो दैट इज वाई दे गिव विद द सीजियम एंड रूबीडियम, है ना. सो दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट. फोर्थ का एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये वाला भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका ध्यान इसमें जाएगा कि इसने सीजियम और रूबीडियम ही क्यों दिया सिर्फ. सो दैट इज वाई वी कैन से ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट सेज political analysis involves both normative and imperative approach. Okay, which of the following statement is correct about the two approaches? So two approaches के बारे में कौन सा statement correct है? First says knowledge acquired through the empirical approach is value loaded. Okay, second says the knowledge acquired through the normative approach is objective neutral. So basically नॉर्मेटिव यानी नॉर्म्स वैल्यूज़, इसको आप अगर वर्डिंग से जाओ तो नॉर्म्स हो गया, देन आफ्टर वैल्यूज़ हो गया, है ना. सो यहाँ पे इंपीरियल अप्रोच दे रखी है, नॉर्मेटिव अप्रोच दे रखी है, तो बेसिकली इंपीरियल को वैल्यू लोडेड दिखा रखा है. बट यहाँ पे क्या है कि नॉर्मेटिव होगा जो वैल्यू लोडेड हो, तो फर्स्ट भी करे इनकरेक्ट हो गया, प्लस सेकेंडली ना ऑब्जेक्टिवली न्यूट्रल है तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया. सो यू विल फाइंड दैट इज द option D is going to be correct, neither one and neither two. Okay, question number 16 says which among the following can't be the feature of the totalitarian regime, है ना. ये वाला क्वेश्चन आपका PYQ में रिपीट हो चुका है, पहले वाला इसी में CDS वाले में हुआ था, आई थिंक 2022 वाले पेपर में हुआ था किसी में. ओके, सो बेसिकली ये से द स्टेट टोटलिटेरियन रेजिम में बेसिकली होता है टोटल कंट्रोल होता है ना स्टेट का.
उसकी इंस्टीट्यूशंस पे, उसके पीपल पे, उसकी मतलब लोगों की प्राइवेट प्लस पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ जो भी होता है उन पे सब पे कंट्रोल होता है। ओके, सो इसके एक्यूस अगर आप इतना भी पता है, टोटलिटेरियन रेजिम इतना भी कॉमन सेंस लगाया है, तो लेट्स एलिमिनेट द ऑप्शंस। फर्स्ट इज द स्टेट कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिकल एंड ऑफन पर्सनल रेजिम ऑफ इंडिविजुअल लाइफ। हाँ, पॉलिटिकल टोटल है तो टोटली कर लेगा ना। ए मोनोपोली ऑफ द मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन, बेसिकली ये वाला है टोटलिटेरियन है तो वो अपने मास कम्युनिकेशन को, जो कम्युनिकेशंस के मीडियम है ना, मीडियाज है, उनको भी कंट्रोल करेगा। सो दैट इज़ वाई ये वाला भी करेक्ट है। वन पार्टी स्टेट होगा, वन पार्टी है तभी तो मोनोपोली होगा। ऑटोनॉमी टू ऑफ द सिविल सर्विसेज, ऑटोनॉमी सिविल सर्विसेज को दे देंगे तो फिर टोटलिटेरियन रेजिम रहा कहाँ पे, है ना। सो हियर यू विल फाइंड दैट की ऑप्शन ये वाले तो सारे करेक्ट है टोटलिटेरियन रेजिम के। यहाँ पे आप देखो तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑटोनॉमी ऑफ द सिविल सर्विस, ऑटोनॉमी नहीं होती सिविल सर्विसेज के, सिविल सोसाइटीज़ को, है ना। सिविल सोसाइटीज़ को अगर ऑटोनॉमी होगी तो फिर टोटलिटेरियन रेजिम ही क्या रहेगी, फिर तो लिबरल हो गया, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज उस टाइप में हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ना। सो इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स hard power can be exercised by both state and non-state actors involving use of threat or coercion. So basically hard power is the military power and non-state actors तो हो गया nations, हो गया कोई भी country हो गई, कोई भी, है ना, जैसे कि यूएसए, इंडिया, ये कंट्रीज हो गई, प्लस अदर जो का एक्टर्स हो गया, नॉन स्टेट एक्टर्स सच एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, ग्रुप्स हो गई, प्लस एनजीओज हो गए। सो बेसिकली हमने देखा है कि हार्ड पावर, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हार्ड पावर यूज़ करती है, सो दैट इज़ वाई वी कैन से हाँ कि नोट करेक्ट, तो ये वाला तो करेक्ट हो जाएगा, हाँ कि यूज़ करती है ना। देन आफ्टर द सेकंड सेज ग्लोबलाइजेशन इज नेसेसरीली इकोनॉमिक नॉट कल्चरल। सो बेसिकली नेसेसरी इकोनॉमिक क्यों है, कल्चरल क्यों है, नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि कल्चरल क्यों नहीं है, तो यहाँ पे हम देखोगे तो कल्चरल भी है ना। बिकॉज कल्चरल, सो ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ इकोनॉमी नहीं, कल्चर भी है ना इफेक्ट हुआ है। तो हियर यू विल फाइंड कि ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। इससे नोट कल्चर क्यों नहीं, कल्चर भी इम्पेक्ट हुआ है। द टर्म वॉशिंगटन सेंसस refers to a policy that seeks इंटरवेंशन इन द मार्केट। सो बेसिकली ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा कि मार्केट इंटरवेंशन से रिलेटेड नहीं है वॉशिंगटन कंसेंसस। नाउ इट्स योर ड्यूटी, योर होमवर्क टू रीड about the Washington consensus and then after comment in the comment section. Okay, then write in the comment section. Okay, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन स्टेटमेंट से 4 says, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट है, इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए भी कट जाएगा, है ना, एंड ए तो कट जाएगा, फिर इनमें देखना है, ये भी कट जाएगा, इन दोनों में देखना है, फोर्थ वाला देखना है। फिर हो गया ओटार्स की जनरली अंडरस्टूड एज इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। ओटा से आप, है ना, मतलब कि इन्फर कर सकते हो ऑटो, है ना, ऑटोक्रेसी से रिलेटेड, है ना। सो हियर यू विल फाइंड दैट दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट। सो यहाँ पे आप देखोगे 2 इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट, 2 and 3 आर इनकरेक्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर, consider the following statements. Okay, so under part 3 of the Constitution of India, individuals can enforce right guaranteed by this part when they are violated by the action of the government authorities. ओके, सो बेसिकली ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है पार्ट 3। सो इसमें दे रखा है कि हाँ कोई भी आपके ना इंडिविजुअल के वोलेट करता हो फंडामेंटल राइट्स, तो आप ना रीट्स पिटिशंस कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में आया था आर्टिकल 32 के थ्रू। ओके, हाई कोर्ट में जाओगे आप आर्टिकल 226 के थ्रू। हाई कोर्ट की रीड जुरिस्डिक्शन, है ना, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती है। हाई कोर्ट, है ना, नॉर्मल अगर कोई भी मतलब राइट है उसके लिए भी, है ना, रीड जारी कर सकता है, प्लस वहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। सो रीड सुप्रीम कोर्ट की, है ना, जो एक्सक्लूसिव पावर नहीं है ये, है ना। सो हियर यू विल फाइंड कि ऑप्शन ए इज स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिविजुअल्स कैन इन्फोर्स राइट guaranteed by this part when they are violated by not only the action of the government authority but also the
और बोट सो इट्स इन एक्शन। कभी कभी होता है ना कि उनके एक्शन से नहीं, उनके काम न करने के कारण भी अगर वॉयलेट हो रहा है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि अगर राइट टू प्राइवेसी है, अगर वो राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड कोई कुछ नहीं कर रहे हैं एफर्ट्स, सो दैट इज वाई वी कैन से वी कैन गो विद द रीड। सो हियर यू विल फाइंड बोथ आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, okay, provide that everyone shall have the right to recognize everywhere as a person before the law. So here you will find कि इंटरनेशनल जो ICCPR प्रोवाइड करता है that everyone shall have right to recognize everywhere एज ए पर्सन बिफोर द लॉ। सो ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है। यह वाला भी आप देखोगे तो इट्स लुकिंग वेरी जनरल और जनरल स्टेटमेंट, सो हियर वी कैन से ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी, सॉरी स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। सेकंड देखोगे तो ऑल्दो इंडिया एग्रीज इन द प्रिंसिपल with the ethos of ICCPR, it is not yet rectified it fully. So basically international covenant ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, सो इसको इंडिया ने रेक्टिफाई भी कर रखा है ना। इसमें आप देखोगे तो इसने बोला है कि एग्रीज इन विद द एथोस ऑफ, मतलब एग्री कर रहा है फिर रेक्टिफाई क्यों नहीं किया फुली, सो दैट इज लुकिंग कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, अपने आप में कंट्रोवर्शियल लग रहा है ना। सो दैट इज वाई वी कैन से द ऑप्शन बी, स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। सो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 says which of the following statement with respect to the right to have a legal aid इज करेक्ट। लीगल एड से रिलेटेड कौन सा करेक्ट है। सो यहाँ पे देखोगे तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ गिवन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। सो बेसिकली ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दे रखा है, आर्टिकल आई थिंक 43A से रिलेटेड है, नॉट श्योर बट यू कैन चेक इट, क्रॉस चेक इट। ओके, सो ये वाला करेक्ट है, DPSP से रिलेटेड है। DPSP पार्ट 4 का पार्ट है हमारे, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ है पार्ट 4A का पार्ट है, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाई गई थी। ओके, सो दैट इज़ द गुड इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो ये एग्जाम में आ सकती है इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर, सॉरी स्टेटमेंट 2 सेज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट लीगल एड कमिटी immediately after the arrest of the person. So basically here is the controversy. Some of the answer key says कि ये वाला इनकरेक्ट है कि क्यों इन्फॉर्म करेगा, पुलिस की ड्यूटी थोड़ी है इन्फॉर्म करने की। बट इफ़ यू गो विद द ओरिजिनल आंसर की ऑफ द UPSC यू विल फाइंड कि बोथ आर मतलब कि बोथ आर गोइंग टू बी करेक्ट। सो बेसिकली ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, सो मे बी पुलिस करता होगा, पुलिस को करना होता होगा ये कमिटीज़ को। ओके, सो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग विद ऑप्शन सी। So question number 21 says which of the following statement as per the universal declaration on human rights is correct. So UNUDHR से related कौन सा correct है। So basically the declaration provide that everyone has a right to seek and enjoy in other countries asylum from prosecution in respect of political crime. So basically ये वाला अभी इससे रिलेटेड आ सकता है, क्योंकि अभी बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको पॉलिटिकल ना मतलब कि टेंशंस के कारण उनको अपनी कंट्री से एक्सपेल कर दिया गया, मतलब भागना पड़ा, एंड दे आर इन द शेल्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ। सो हियर इट इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, सो ये वाला वे वाला करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड सेकंड क्या बोल रहा है, द डिक्लेरेशन प्रोवाइड दैट एवरीवन हैज़ द फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी everyone has the freedom from arbitrary deprival of nationality except for the freedom to change the nationality. No, नहीं, everyone नहीं होता है ना। So that is why here you will find option A is going to be correct option. To question number 22 says which of the following UN organization has been awarded with the Nobel Prize twice. This question was repeated सेम विद ऑप्शंस है ना, सेम रिपीट हुआ था 2025 फर्स्ट वाले में। सो देख लो ना, CDS के CDS में रिपीट हो रहे हैं। ओके, सो हियर यू विल फाइंड कि ये ह्यूमन राइट्स वाला है ना, कॉमन सेंस लगाओ ना, ह्यूमन राइट्स है तो ये वाला नोबल काम कर रहा है, तो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड तो इसको 2 बार मिलेगा है ना। ये इसको मिला था 1954 में मिला था एक तो, एंड 1981 में मिला था। नाउ इट्स योर ड्यूटी, क्योंकि ये 2 बार आ चुका है CDS में, अभी आ सकता है CAPF में आ सकता है,
तो IPCC के बारे में पढ़ो, IAEA के बारे में पढ़ो, UNHRC के बारे में पढ़ो एंड यूनिसेफ के बारे में पढ़ो, इनके बारे में. सो दैट इज द ओनली सोर्स दैट यू कैन follow for your examination. Okay, question number 23 says which of the following statement is correct about the vaccination that provides protection against an infectious disease. So basically vaccination से related है. So here you will find it blocks the entry of infectious agent in the body. So basically है ना, वैक्सीन्स का काम होता है ब्लॉक करना, नहीं होता. अगर उनके वैक्सीन्स में होता है कि कोई भी जो डिजीज़ है, कोई भी वायरस है, वो बॉडी में आ जाओ, देन आफ्टर दे विल वर्क इन द बॉडी, है ना. सो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा. देन आफ्टर द सेकेंड स्टेज इज प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इन्फेक्शन. सो बेसिकली एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस करती ही है ना. थर्ड स्टेज इट किल्स द इन्फेक्टियस एजेंट्स व्हेन इट एंटर्स इन द बॉडी. सो बेसिकली कुछ में ये भी कंट्रोवर्सी है, इन दोनों में भी कंट्रोवर्सी है, बट वी विल गो विद द ऑप्शन बी एंड सी, मतलब कि स्टेटमेंट बी एंड सी इज करेक्ट. सो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, यहाँ पे हमारी टिक लग सकती थी, बट इफ़ यू आर नॉट अवेयर. बट ये भी देखो ना, ऑप्शन ए इज़ वेरी वेरी, है ना, जनरल स्टेटमेंट. सो यू कैन से it is going to be incorrect. Okay, question number 24 says which cell in the human body has no nucleus. जो न्यूक्लियस कौन से में नहीं है. सो यहाँ पे आप देखो मसल सेल्स हो गई, मसल सेल्स में है ना न्यूक्लियस होता है. फिर हो गया फाइगोसाइटिक सेल्स हो गई, फिर हो गया रेड ब्लड सेल, फिर हो गया सिलिसिएट सेल्स. सो बेसिकली इनमें हो गया ना, ये ना इनमें किसी न किसी टाइप में न्यूक्लियस पाया जाता है. इनमें सेल्स होती है, सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है. बट हमने RBC में, दैट इज़ द रेड ब्लड सेल में, कभी भी न्यूक्लियस नहीं पड़ा. सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ गोइंग टू बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 25 says the use of plastic has led to a number of environment related problems. For this, which of the following statement is correct? प्लास्टिक्स के बारे में कौन सा करेक्ट है. सो बेसिकली दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो ये वाला तो करेक्ट ही है ना. इसमें तो क्या ही आप पढ़ोगे नीचे, बट पढ़ लो. दे डू नॉट गेट रिलीज इन द वाटर एंड फूड. क्यों रिलीज नहीं होंगे भाई, रिलीज होंगे ही, जब आप फेंक रहे हो तो जाएंगे. दे डू नॉट हैव एनी ना बायोकेमिकल सिंथेसिस एक्टिविटी. क्यों नहीं होंगी भाई, होंगी जब वो इन्वायरमेंट में है. तो डी सेज दे आर हार्मलेस क्यों होंगी ह्यूमंस के लिए, है ना, हार्मफुल ही है प्लास्टिक तो. सो हियर यू विल फाइंड ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 26 सेज माइक्रो बॉडीज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स कंटेन्स. सो माइक्रो बॉडीज होती है जो प्रेजेंट होती है प्लांट और एनिमल सेल्स में, उनसे रिलेटेड कौन सा है. सो माइक्रो बॉडीज में बेसिकली हमने एंजाइम सुना होगा ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंजाइम. सो बेसिकली ये वाला यू विल फाइंड कि अगर आप थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस और थोड़ी बहुत भी आपने साइंस पढ़ी है, यू विल फाइंड दिस ऑप्शन करेक्ट. ओके, सो ब्रोकन डाउन मेम्ब्रेन इससे रिलेटेड है ही नहीं. एसिडिक फ्लूइड से रिलेटेड तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी. वेस्ट मेटाबॉलिज्म नहीं. यहाँ पे आप देखो मोस्ट सूटेबल है, जो अगर आपको पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, दैट इज एंजाइम्स. ओके, so option B is correct. Question number 27 says an antibacterial enzyme present in saliva or tear is called. So basically saliva और tears में कौन सा एंटीबैक्टीरियल एंजाइम पाया जाता है. सो दैट इज द लाइसोजाइम, है ना. सो बेसिकली लाइसोजाइम पाया जाता है. इट्स ए फैक्चुअल, है ना. लाइपेज बेसिकली लार में पाया जाता है, बट ये वाला एंटीबायोबैक्टीरियल नहीं है ना. लाइपेज आई थिंक नॉट लार, I'm not sure. Okay, so here you will find that isozyme is going to be correct. Option C is going to be correct. Question number 28 says which set of vegetables is underground stem or modified stem of a plant. So here you will find, you have to find कि कौन से में underground stem होती है और modified stem of होती है. So basically यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन पोटैटो हो गया, फिर आर्टिचोक हो गया, फिर राउंड गोर्ड हो गया, देन आफ्टर अनियन हो गया, फिर गार्लिक हो गया, कैरेट हो गया, देन पटाटो हो गया, फिर अनियन हो गया, फिर गार्लिक हो गया, पटाटो गार्लिक टर्निप हो गया. सो हियर यू विल फाइंड कि पटाटो, देन अनियन एंड देन इन द गार्लिक. सो इनमें होती है ये अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है और मॉडिफाइड स्टेम्स, जो भी बोलो आप. सो हियर यू ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 29 सेज which of the following indicators is or are used to observe the monetary transmission
mechanism in the economy. So basically monetary transmission of in the economy से related transmission mechanism in economy से related कौन सा correct है. So यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं पता देन आपका रामबाण कौन सा होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि हमें देख मतलब ओ सॉरी इसमें ऑप्शन सी डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते. ओके सॉरी. ओके सो यहाँ पे आप देखोगे तो पहला हो गया वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट हो गया ये वाला. ऑब्जर्व द मोनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म. मोनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म से रिलेटेड कौन सा है ना, कौन सा ऑब्जर्व करता है. सो यहाँ पे आप देखोगे तो वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट ये वाला करता है. देन वेटेड एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट ये वाला भी करता है. देन आफ्टर 1 ईयर मीडियन MCLR ये वाला भी करता है ना, मोनेटरी ट्रांसमिशन रिलेटेड है. बट अगर आप डी देखोगे, स्टेटमेंट 4 देखोगे, SDF रेट्स हो गया, सो ये वाला नहीं होगा. सो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन बी दैट इज A, B, C and C is correct. Okay, C are correct. Question number 30 says consider the following statement regarding instrument or of monetary policy. monetary policy के instrument से related कौन सा correct है ना. So here you will find standing deposit facility rate was introduced in 2022 अप्रैल. सो हाँ ये वाला उसी टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था. देन आफ्टर SDF रेट रिप्लेस्ड फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट एज द फ्लोर ऑफ LAF कॉरिडोर. सो बेसिकली ये वाला भी करेक्ट है ना. सो यहाँ पे आप देखोगे सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट. सो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे कॉमन सेंस भी लगाओगे तो SDF है, इंट्रोड्यूस हुआ था अप्रैल 2020 में, डेफिनेटली नया कॉन्सेप्ट है. तो हाँ फिर SDF रेट है ना जो अभी नया नहीं आया है वो किसी चीज़ को रिप्लेस करेगा, फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट एज द फ्लोर रेट ऑफ द LAF कॉरिडोर होता है जिसमें कि लोन को इस तरफ मतलब कि एक स्केल मान लो है ना, एक कॉरिडोर है, इससे यहाँ से यहाँ तक बढ़ सकता है. ओके सो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है. सो यहाँ पे आप देखोगे बोथ A and B आर करेक्ट. सो एज द टाइम सजेस्ट वी आर ऑलरेडी डन विद द 30 क्वेश्चंस. So for today that is enough. From tomorrow we will move towards the next set of questions. So I hope you learn something from this video, and I request everyone that you should share this with your friends and family so that they will also get benefit out of this initiative. And you can join our mentorship program by applying in our mentorship program, that is by filling up the Google form that is provided in the comment section. Sorry, not comment section, that is description. So that is for today. We will meet tomorrow with the next question. Okay.